Welcome to VLearn. This is session 3 of Business Mathematics. Today we are going to discuss about the differential calculus. Differentiation calculus आज हम discuss करेंगे. Under this category we are going to discuss about the definition, that is what are differentiation calculus, what are differential functions available in this. Then we are going to discuss the different rules which are available for differentiation. Then after that we are going to discuss about the logarithmic differentiation, and at last we are going to discuss about the solved problems in calculus. So first of all let us discuss about the definition of differentiation. First of all हम definition discuss करते हैं differentiation की. So basically when we talk about the definition part in mathematics, differential calculus is a subfield of calculus concerned with the study of the rates at which quantities change. Basically it is one of the two traditional divisions of calculus, the other being integral calculus. तो हमारे पास ये क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक सब फील्ड है कैलकुलस का. कैलकुलस एक बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहाँ पर हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन करते हैं एट विच दे आर चेंज. सो हेयर वी कैलकुलेट द स्टडी, हेयर वी स्टडी द रेट एट विच क्वांटिटीज चेंज. It is one of the two traditional divisions of calculus, the other being integral calculus. ये एक बेसिकली एक टेक्निक है, वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कैलकुलस. जो हमारे पास दूसरी टेक्निक है वी कॉल इट इंटीग्रल कैलकुलस. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और वी कैन से द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इन डिफरेंशियल कैलकुलस आर द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, रिलेटेड notions, that is notations such as the differential and their applications. So हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंशियल फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, देयर रिलेटेड नोटेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस. So the derivative of a function at a chosen input value describes the rate of change of the function near that input value. This process of finding a derivative is called डिफरेंशिएशन. इसको हम क्या बोलते हैं, एक फंक्शन को, एक पर्टिकुलर फंक्शन के हम डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करते हैं किसी एक इनपुट वैल्यू पर, हम उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. सो हियर आर डिफरेंट फॉर्मूलेज विच वी कैन यूज फॉर द डिफरेंशिएशन पार्ट. डिफरेंशिएशन के लिए हम जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो यूज कर सकते हैं, एंड दीज फंक्शंस आर हियर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट वी कैन यूज y इक्वल्स टू एफ एक्स and its differentiation part is dy over dx equals to f dash x. मतलब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसे डिफरेंशिएशन डिनोट करते हैं हम डैश से. दैट इज यू कैन सी हियर हमारे पास एक फंक्शन है y एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, और उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया dy over dx, दैट इज d शो करता है यहाँ पर चेंज इन रेट, दैट इज चेंज इन वैल्यू. सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इक्वल्स टू f dash x. सो चेंज इन फंक्शन f x. So ln denotes log. So log x equals to 1 upon x. log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं then we'll get 1 upon x. Similarly e raised to the power ax we'll get a e to the power ax. sin x का डिफरेंशिएशन है cos x. cos x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं we'll get minus sin x. Similarly when we differentiate tan x we'll get sec square x, and when we are going to differentiate sec x, the formula for this is sec x tan x. Similarly cosec x equals to minus cosec x cot x, and at last cot x equals to minus cosec square x. So these sin x, cos x, tan x, these are the basically trigonometric functions. ये trigonometric functions हैं, trigonometry के कुछ functions हैं जिनको हम differentiate कर सकते हैं. Now here are some differentiation rules. Basically the constant multiple rule. constant multiple rule में क्या है, suppose ये एक फंक्शन था, ये एक वेरिएबल था जिसको आपको डिफरेंशिएट करना था ए एफ, उसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या आएगा, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज ए. दिस विल बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा फिक्स, और हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ जो वैल्यू चेंज होती है उसका. यहाँ पर हमने चेंज किया, हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया एफ डैश को, सो द आउटपुट इज ए एफ डैश. सिमिलरली द सम रूल. सम रूल्स मीन्स अगर दो फंक्शन है उसको ओवरऑल आपको डिफरेंशिएट करना है देन डिफरेंशिएट देम सेपरेटली. एज यू कैन सी हियर एफ डैश प्लस जी डैश. सबसे पहले एफ को आप डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जी को डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएटिंग द फंक्शंस व्हेन दे आर इन अ एडिशन.
नाउ द सिमिलरली द सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है, सपोज f माइनस जी डैश, दैट मीन्स अगर f से एक फंक्शन है एंड फ्रॉम दिस फंक्शन g फंक्शन इज सब्ट्रैक्टेड, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज टू फंक्शंस टुगेदर, हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो वी हैव डिफरेंशिएटेड सेपरेटली दीज टू फंक्शंस, यहाँ पर हमने दोनों फंक्शंस को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने f को डिफरेंशिएट किया, दैट्स व्हाई वी गेट f डैश, देन for the differentiation of g we get g dash. So this is how basically we differentiate the functions. Now here is another rule, that is the product rule. Product rule को हम बोलते हैं Leibniz rule. Product rule को हम Leibniz rule भी बोलते हैं. Product rule में क्या है, सपोज अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा different functions हैं and when if these functions are multiplied with each other, now अगर ये दोनों functions एक दूसरे से multiply ऑपरेशन में हैं तो हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, फॉर द फंक्शंस f एंड g द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन hx इक्वल्स टू fx gx विद रिस्पेक्ट टू x इज, दैट मीन्स अगर ये जो hx एक फंक्शन है उसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं fx और gx, अब अगर हमें fx और gx को डिफरेंशिएट करना है तो वी कैन राइट इट इन द फॉलोइंग मैनर. hx का हमने डिफरेंशिएशन किया, वील गेट h डैश x. सिमिलरली fx, फर्स्ट टाइम हमने fx को डिफरेंशिएट किया f डैश x और हमने सेकंड जो फंक्शन है उसको एज इट इज राइट किया. नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वील यूज प्लस ऑपरेटर, देन जो फंक्शन हमने पहले डिफरेंशिएट किया था दैट इज fx, उसको हमने एज इट इज लिखा और हमने अब क्या डिफरेंशिएट किया gx को, दैट इज g डैश x. सो एक बार हम fx को डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसको gx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली एक बार हम gx को डिफरेंशिएट करेंगे और उसे fx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म दिस प्रोडक्ट रूल. नाउ द नेक्स्ट हेयर इज चेन रूल. अब जब हम चेन रूल की बात करते हैं तो चेन रूल कहाँ पर हम यूज करते हैं, वेयर अ फंक्शन कंटेन्स अनदर फंक्शन इनसाइड इटसेल्फ. एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, दैट मीन्स व्हेन अ फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस, देन वी कैन यूज चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस. इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का यूज कर सकते हैं. नाउ एज यू कैन सी हियर, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन hx इक्वल्स टू f ऑफ gx विद रेस्पेक्ट टू x इज, मतलब हमारे पास कोई एक फंक्शन था दैट इज hx एक फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ gx, दैट मीन्स f के अंदर एक और फंक्शन है gx. अब इस टाइप के फंक्शंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल. चेन रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस hx को डिफरेंशिएट किया, दैट इज वी गॉट h डैश x. नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो fx ये मेन फंक्शन है सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज वी विल गेट f डैश gx. अब मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसके इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन को मेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो gx का डिफरेंशिएशन हुआ g डैश x एंड वी मल्टीप्लाइड इट विद f डैश g ऑफ x. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली परफॉर्म द चेन रूल. नाउ कम्स द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब आता है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, बेसिकली इट यूजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. लॉग्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करके हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज बेसिकली द मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस, uses the properties of logarithmic functions to differentiate complicated functions and functions where the usual formulas of differentiation do not apply. मतलब जहाँ पर हमारे यूजुअल फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं होते हैं वहाँ पर हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर कोई हमारे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल हम इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हेल्प से उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. लाइक हेयर यू कैन सी एन एग्जाम्पल. यहाँ पर एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का नॉर्मल एग्जाम्पल देख सकते हैं. लाइक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन लिया x रेज टू द पावर साइन x. नाउ यू कैन नॉट सॉल्व दिस फंक्शन विद अदर टेक्निक्स. अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन से तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमने यहाँ पर जनरली क्या टेक्निक यूज़ की, हमने यहाँ पर यूज़ किया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. एज यू कैन सी हियर, वी फर्स्ट नोट दैट
there is no formula that can be used to differentiate directly this function. इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो द फर्स्ट डेरिवेटिव मे बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट टेकिंग द नेचुरल logarithm of both sides of y equals to x sin x. सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमने क्वेश्चन लिखा y equals to x sin x. अब इसमें दोनों साइड हमने क्या किया? log लिया. log y equals to log x to the power sin x. अब दोनों साइड इस log को लेने के बाद हमने क्या किया? we use log प्रॉपर्टीज टू राइट दी अबव इक्वेशन एज फॉलोज. हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया. log की प्रॉपर्टीज क्या है? हमने यहाँ पर क्या किया? log y को हमने एज इट इज लिखा. देन विद द हेल्प ऑफ log वी हैव रिटन दिस sin x एंड log x. दैट मीन्स हमने log x को यूज किया और sin x को यूज किया कि हम sin x के जो हमारे पास है उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? sin x देन log x. ये हमारी प्रॉपर्टी होती है log में कि कोई एक नंबर है उसके रेज टू द पावर में कोई दूसरा नंबर है, तो विद द हेल्प ऑफ log जो हमारी पावर है वो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द लॉगरिथमिक पार्ट. now you can see here the next step is we now differentiate both sides with respect to x using the chain rule on the left side and the product rule formula for the differentiation on the right side. हमने लेफ्ट साइड पर चेन रूल अप्लाई करेंगे और राइट साइड पर प्रोडक्ट रूल. सो वील गेट y डैश अपॉन y इक्वल्स टू cos x देन log x सिमिलरली प्लस sin x एंड 1 अपॉन x. मतलब हमने यहाँ पे sin x को जब डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने sin x को जब डिफरेंशिएट किया आपको मिला cos x. देन सिमिलरली यू हैव यूज्ड log x प्लस यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज किया है. देन अपने sin x को एज इट इज लिखा है. log x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 अपॉन x. सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y टू ऑब्टेन. अब हमने दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है? y डैश अपॉन y. अगर इंटू y हम करते हैं तो y कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट्स वाई y डैश विल बी देयर. y डैश इक्वल्स टू cos x देन log x सिमिलरली 1 अपॉन x into sin x and this whole equation will be multiplied by y. अब आप देख सकते हैं इनिशियली आपके क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारी y की वैल्यू क्या थी? we have x sin x. सो हमने y को उससे रिप्लेस किया. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. हमारे पास जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर कि हम डायरेक्टली कोई और टेक्निक यूज नहीं कर सकते, कोई और रूल यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर हम क्या करते हैं? लॉगरिथमिक रूल यूज करते हैं. So now we can solve such type of problems with the help of logarithmic functions. Let's take example of this. Suppose हमारे पास क्या है? कोई भी एक फंक्शन है, like we have a normal logarithmic function. अभी हमारे पास एक logarithmic function है. Suppose हमने फंक्शन लिया y equals to x raised to the power sin x. अभी ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम डायरेक्टली किसी और टेक्निक के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स वाई हमने क्या किया? हमने दोनों साइड log लिया. सो log y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर sin x. अब ये जो हमने log y लिया है, अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे. तो हमने क्या किया? log y इक्वल्स टू ये जो sin x जो पावर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस sin x को हम आगे लेके आ सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log. सो sin x इंटू log x. अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई. अब हम यहाँ पर अपने रूल से अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. log y को हमने डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा हमारे पास? y डैश अपॉन y एंड सिमिलरली यू गेट sin x. log x को जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? cos x log x प्लस sin x देन 1 अपॉन x. ये हमें कैसे मिला? sin x को सबसे पहले हमने सॉल्व किया, हमें मिला cos x log x. हमने सेम एज इट इज देखा, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. देन एज यू कैन सी देयर दैट द प्रोडक्ट रूल, इन प्रोडक्ट रूल वी यूज प्लस. आफ्टर दैट sin x को हमने एज इट इज यूज किया. देन वी हैव डिफरेंशिएटेड log x. log x को हमने डिफरेंशिएट किया. सो वी विल गेट sin x 1 अपॉन x. 1 अपॉन x हमें यहाँ पे मिला. सो आफ्टर दैट
विल मल्टीप्लाई दिस विथ दी वाई डैश। अब हमने ये कैलकुलेट करने के बाद हमने वाई डैश से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, वाई डैश अपॉन वाई इंटू वाई, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, एंड देन विल गेट वाई डैश इक्वल्स टू cos x log x प्लस sin x इंटू 1 अपॉन x एंड इंटू वाई। नाउ ये जो y है इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर फंक्शन कॉल्ड, ये हमारे पास फंक्शन था दैट इज y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x। नाउ this equation can be replaced with value of y, so we'll get y dash equals to cos x log x plus sin x 1 upon x and into, you can see the value of y here is x raised to the power sin x. So this is how generally we solve such type of questions. Now we are going to discuss about the rest part of this. Now basically here are certain problems related to calculus. These are the problems which you can solve out easily. So first of all, here is, you can see fx equals to 4x to the power 6, and then the differentiation of this is fx equals to 24x to the power 5. हमने यहाँ पे ये इसको कैसे सॉल्व किया, हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं. लाइक हमारे पास फंक्शन, सपोज क्वेश्चन है दिस 4x to the power 6, सो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइक वी हैव fx इक्वल्स टू 4x to the power 6. सपोज ये हमारे पास फंक्शन है. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सपोज ये जो हमारे पास फंक्शन है x to the power 6, इस कांस्टेंट टर्म को हम सेपरेट रखते हैं, दैट इज़ 4 हमने मल्टीप्लाई में रखा, 4 मल्टीप्लाई. अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू एक्स टू द पावर 5. मतलब जो हमारे पास यहाँ पे टर्म होती है उसको हम डायरेक्टली आगे ले जाते हैं, एंड देन एक्स टू द पावर n-1, जो हमारे पास ये n है इसको हमने 1 रिड्यूस किया, एंड देन दिस. सो we'll write 6 into x to the power 5. So the total will be 6 4 24 x to the power 5. So this is how we solve generally this type of questions. Now let's take some other examples. Now similarly here you can see fx equals to 3x to the power 7, then f dash x equals to 21 x to the power 6. दैट इज आपने क्या किया, सबसे पहले x7 को डिफरेंशिएट किया, दैट इज x7 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, x टू द पावर 7 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 6. सो विल गेट 7 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 21 x टू द पावर 6. सिमिलरली वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इज hx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 9 प्लस 8x क्यूब. बेसिकली जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट लॉजिक्स यूज़ करने होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन लाइक hx इक्वल्स टू x टू द पावर 9 प्लस 8x होल क्यूब. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया लेट hx, जो हमारा hx है उसको हमने क्या किया, दो फंक्शंस के फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया, दैट इज g एंड fx. तो यहाँ पर हमने fx क्या लिया, हमने fx लिया x रेज टू द पावर 9 प्लस 8x, और सिमिलरली gx हमने क्या लिया, gx इक्वल्स टू x क्यूब. तो यहाँ पर हमने gx लिया है x क्यूब और fx क्या लिया है x रेज टू द पावर 9 प्लस 8x. अब जब हमने fx को डिफरेंशिएट किया, वील गेट 9x टू द पावर 8 प्लस 8. x को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हम x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, दैट्स वाई वी हैव 9x टू द पावर 8 प्लस 8. सिमिलरली जब हमने g को डिफरेंशिएट किया, gx को डिफरेंशिएट किया, विल गेट 3x स्क्वायर. नाउ वी हैव f डैश x एंड g डैश x. अब हमें दोनों मिल चुके हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट h डैश x. सो h डैश x इक्वल्स टू g डैश fx मल्टीप्लाई f डैश
x, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लॉजिक हमें अप्लाई करना होगा। सो h डैश x क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 8x का होल स्क्वायर इंटू 9x to the power 8 plus 8. So this is how generally we are going to solve such type of questions. Here you can see h dash x equals to 3, then 9x to the power 8 plus 8, then x raised to the power 9 plus 8x whole square. So basically this is how we are going to solve such type of questions. Now let's discuss about the numerical part of this. So first of all, let's take one question, that is hx equals to like x raised to the power 9 plus 8x and that is whole cube. हमने ये क्वेश्चन लिया। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, वी हैव इमेजिन दैट इज एच एक्स को हमने लिखा जी ऑफ एफ एक्स। हमने ये दो पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स को हमने इमेजिन किया कि एफ एक्स क्या है। एफ एक्स को हमने लिया एक्स टू द पावर 9 प्लस 8x, दैट इज़ ये जो हमारे पास फंक्शन है टोटल, इसको हमने एफ एक्स से डिनोट किया। सिमिलरली जी एक्स से हमने डिनोट किया एक्स टू द पावर 3x टू द पावर एक्स क्यूब को हमने क्या लिया जी एक्स, दैट इज ये जो पूरा फंक्शन है इसको हमने x से डिनोट किया एंड देन दिस क्यूब पावर, सो दिस इज x क्यूब। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड f डैश x हमने कैलकुलेट किया, वील गेट 9x टू द पावर 8 प्लस 8। सिमिलरली हमने g डैश x कैलकुलेट किया, वील गेट 3x स्क्वायर। आफ्टर दैट वील यूज द फॉर्मूला h डैश x इक्वल्स टू, हम यहाँ पर जब h डैश x करेंगे तो वील गेट g डैश एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। जो हमने वैल्यूज अभी कैलकुलेट किए हैं उन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो नाउ h डैश एक्स, अब यहाँ पर मिलेगा हमें h डैश एक्स इक्वल्स टू 3 x टू द पावर 9 प्लस 8x whole square multiplied by 9x to the power 8 plus 8. So basically this is g dash fx, जो हमारा fx आया था 9, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आया था x to the power 9 plus 8x, उसको हमने इसके अंदर पुट किया। we have to perform the whole square then multiplied by 3 and this is the वैल्यू विच वी हैव गॉट ऑफ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ पे पुट की। नाउ दिस टोटल विल बी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी विल गेट 3 9x टू द पावर 8 प्लस 8 एंड x टू द पावर 9 प्लस 8x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सिर्फ हमने प्रॉपर सीक्वेंस में इसको अरेंज किया है, पहले सिंगल पावर देन सेकंड डिग्री। सो ये क्या है हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस का एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सिमिलरली you can see here there are other problems with here we have used the Leibniz rule, that is y equals to x to the power 9 plus 8x cube। यही सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। so now here is a question which is concerned with the product rule। you can see here x cube cos x। so x cube cos x में हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x क्यूब को, दैट इज 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। सिमिलरली हमने इसको एज इट इज़ यूज़ किया, देन प्लस then x cube into cos x को हमने डिफरेंशिएट किया, we'll get minus sin x। so this is how we are going to solve the product related questions, the product rule। now as you can see here this 3x square into cos x, we will get 3x square cos x then minus sin x। so we have replaced plus sign with minus, so minus x cube sin x
Now x square we have taken common from these two terms, so x square into 3 cos x minus x sin x. So this is how generally we can solve out such questions. Similarly, here is another question related to the product rule. Now at the end of this exercise, this session, here are some problems which you can solve out for yourself. So the first one is fx equals to x raised to the power 4 divided by x plus 1. Similarly, y equals to 10 square 4x. So you have to find the differentiation of these two questions. So at the end of today's, so this is the end of today's session. Thank you.